अब ऐसा करो। मैं डॉक्टर सुरिंदर संधू प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना तो। मैम तुसी डिस्प्ले ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਣਕ ਆ। कनक है जी, ਹਾਂਜੀ कनक है, सरों है, ये पैडी दियाँ हैं, राइस दियाँ वैरायटियाँ हैं, मूंगी है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਵੇਂ ਕਣਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ हाँ जी हाँ जी मैडम, ये नवीਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਉન્નਤ ਕਿਸਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 826, ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਈਵਨ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਹਾਈ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਹਾਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਰੋਂ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਗੋਭੀ ਸਰੋਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਨੋਲਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਨੋਲਾ ਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਰੋਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਸਿਕ ਐਸਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮਤਲਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇਹ ਹਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹਲਦੀ ਆ। ਹਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ 120 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਝਾੜ ਹੈ ਮੈਮ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਮ, ਕਿ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੇਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਨੂ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਫਰੂਟਾਂ ਵੱਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਆਪਣੀ ਹਲਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਦੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਹਲਦੀ ਵੇਚਣ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਆਲੂ ਹੈ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਮੈਮ, ਇਹ ਮੈਮ ਕੱਚੀ ਪਟਾਈ ਦੇ ਆਲੂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਪਟਾਈ ਦੇ। ਕੱਚੀ ਪਟਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ 40-50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਕੀ ਪਟਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਮੈਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ ਮੈਮ। ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਸ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਚਾਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੈਲਫ। माई सेल्फ किरण जोसेफ सिंजेंटा फ्रॉम बाज़ल से आ रहा है, स्विट्ज़रलैंड से आ रहा है, और मैं डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजर हूँ सस्टेनेबिलिटी पर। सर ये काउंटर किस चीज़ का लगाया हुआ आपने? यहाँ पे हम 2 प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं। G20 कॉन्फ्रेंस का थीम है कि कैसा कोलैबोरेशन अक्रॉस कंट्रीज़, अक्रॉस रिसर्च, अक्रॉस एकेडमिया और अक्रॉस इंडस्ट्री डेवलप कर सकता है। हमको 2 स्टोरीज़ है यहाँ पे। एक स्टोरी एक मेड इन पंजाब, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, बायोडाइवर्सिटी सेंसर। हम IIT रोपर्ड और फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट इन जर्मनी टुगेदर वी आर बिल्डिंग दिस। और दूसरा प्रोडक्ट है एक ड्रोन टेक्नोलॉजी और एक इंडियन स्टार्टअप विद एन इंडियन स्टार्टअप हम डेवलप कर रहा है। ये फार्मर्स को हेल्प करने के लिए बेटर एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के लिए हम डेवलप कर रहा है, क्योंकि हमारा थीम है कि कोलैबोरेशन अक्रॉस बॉर्डर्स और कैसा एग्रीकल्चर यंग जनरेशन के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा। दैट्स आवर थीम। और टेक्नोलॉजी विल हेल्प टू ब्रिंग न्यू जनरेशन टू लुक एट फार्मिंग एज अ ग्रेट प्रोफेशन टू सस्टेन feeding the world. And Punjab is a bread basket and we need young generation to enter into agriculture. Thank you. मैं सोनी अग्रवाल हूँ, कम्युनिकेशंस मैनेजर सिंजेंटा ग्रुप, मैं पुणे से हूँ। और मैम जो प्रोडक्ट आपके जैसे सबने अलग अलग काउंटर्स लगाए हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग थीम उनके पास है। आपके पास जो है जिस थीम के बारे में आप बात कर रहे हो, आप बता सकते हो उसको?
सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी प्रमोट कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, और हमारी ड्रोन जो डिस्प्ले में है वो एग्री एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है। एंड फार्मर्स को स्प्रेइंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, वेरिन काफ़ी पैचेस है जहाँ मिस आउट हो जाते हैं। हमारी ड्रोन उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है, विच इज़ हेल्पिंग देम आउट। आपने यही थीम को चूज़ की और कुछ भी तो चूज़ कर सकते थे आप, जैसे सबने अलग अलग चीज़ें पकड़ी हुई हैं, आपने कुछ अलग किया है। इसका आपको क्या फ़ायदा होगा? जैसे बर्ड्स के बारे में वो बोल रहे हैं, बर्ड्स को क्या फ़ायदा होगा? Myself Sonu Kumar. I am the services manager from Syngenta India. I am currently located at Pune location. Yes. तो आज हमने जो स्टॉल पे ड्रोन का प्रोसीजर लगाया है या डेमो लगाया है, ये फार्मर्स को अवेयर करने के लिए लगाया है कि हम जो आज तक अभी तक देखते आ रहे थे कि फार्मर जो है हाथ से स्प्रे कर रहे हैं, डोली से स्प्रे कर रहा है, कभी कभार उसे नुकसान होता है, दवाइयाँ उसके जो है शरीर में चली जाती हैं, उसको सांस की बीमारी हो सकती है। तो ये क्या है कि प्रेसिजन एग्रीकल्चर के थ्रू एक तो उसकी हेल्थ का जो है बेनिफिट रहेगा, और जो चीज़ें उसको करने में 40 मिनट लगती थी, अब वो स्प्रे करने में उसको 8 मिनट लग रही हैं, और जो पानी की रिक्वायरमेंट उसकी 150 लीटर रहती थी या 120 लीटर रहती थी, वो 8 से 10 लीटर में भी उसका रिसोर्स बच रहा है, टाइम बच रहा है। और लेबर का जो उसको हमेशा डर रहता है कि कई टाइम पे ऐसा रहता है कि जुलाई जैसे जून और जुलाई के महीने में हमारी लेबर का बहुत शॉर्टेज रहता है पंजाब के एरिया में। तो हमारे जो बड़े फार्मर्स होते हैं, किसान भाई रहते हैं, उनको रहता है कि उस टाइम पे जो है 2 दिन का स्प्रे का टाइम मिलता है, लेकिन लेबर की वजह से वो स्प्रे नहीं कर पाते। तो उसमें क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी उनको हेल्प करेगी कि अगर उनको मौसम का भी थोड़ा सा डर लग रहा है तो वो फटाफट जो है ड्रोन की सुविधा को बुला सकते हैं, और जो है जो टाइम उनको 2 दिन का लगने वाला था वो 1 दिन के अंदर भी उनकी पूरी स्प्रे कर सकता है। सर, ये जो ड्रोन है जिसके कैसे वर्क करता है? जी, इसमें कैसा है कि हम जियो फेंसिंग रहती है इसकी, तो जियो फेंसिंग के अंदर क्या है कि हम सिर्फ इसको मैप करते हैं, फार्मर हमें बताएगा कि उसको इस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्प्रे करना है, तो हम उसको फेंस कर देंगे, और उसके बाद में सिर्फ हमको एक क्या है कि एक साइड में जो है फार्मर को दवाई अवेलेबल करानी होती है और पानी थोड़ा सा अवेलेबल होना चाहिए, वहाँ पे हम उसको मिक्स करके रखेंगे, और जहाँ पे भी हमें स्प्रे करना है वी कैन मैप, और मैप करने के बाद में हम जो है वहाँ एरिया को स्प्रे कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ है सर इसमें जो 8 मिनट के अंदर सारा एरिया कवर कर देगा ये? जी, इसमें क्या है 4 नोजल्स का यूज़ हुआ है, और हमने क्या है इसको जो इसकी बूंदें हैं वो माइक्रोन लेवल पे डेवलप करी हैं। तो आप जब नॉर्मल जो है नैपसेक स्प्रे से करते हैं तो उसके बूंद का साइज़ और इसके बूंद के साइज़ में डिफरेंस रहता है, और क्या है एक आपको एक फोक टाइप की कंडीशन दिखती है। वो फोक टाइप की कंडीशन की वजह से क्या है एक लगभग कंटिन्यूटी में स्प्रे कर सकते हैं। एक इंसान जब मूव करता है उसकी स्पीड कम रहती है, और लगभग एक ड्रोन जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है स्प्रे कर सकता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि आपका एक बहुत तेज़ी से जो है आपका पूरा एरिया कवर हो गया, तो वो जो है आपको बेनिफिट देता है, इस वजह से आपको टाइम भी कम लग रहा है। सर, आपने फार्मर्स ही क्यों चूज़ किए? और भी कोई चीज़ चूज़ कर सकते थे ना आप? फार्मर को चूज़ करने के लिए मैडम मुझे रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए, फार्मर कम्युनिटी को सर्व करना भारत के अंदर सबसे बढ़िया जो है प्रोफेशन को सर्व करना है। दिस इज़ द मोस्ट नोबल कॉज। तो इस नोबल कॉज में अगर सिंजेंटा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वी आर मोर देन हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। आप अपनी तरफ से जो फार्मर्स हैं उनको क्या मैसेज दोगे इसके बारे में? हम यही कहना चाहेंगे कि अभी जो है भावी पीढ़ी के लिए जो अभी एग्रीकल्चर को ये इस तरीके से लेते हैं कि दिस इज़ अ ओल्ड ट्रेडिशन, तो उसके लिए क्या है नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो दैट कैन बी ए फैशन ट्रेंड फॉर देम, दैट कैन बी ए ट्रेंड सेंटर कि अब एग्रीकल्चर जो है रिफॉर्मेशन पे है, और आप जो है उसका एक पार्ट बन सकते हैं, और जो नई जनरेशन है वो भी जो है एग्रीकल्चर को खुल के जो है अडोप्ट। क्या चीज़ है ये सर? ये लेवेंडर ऑयल है, कश्मीर से हमने लाया है। ये फ्लावर होता है, उसका ये एसेंशियल ऑयल है, इसको बोलते हैं लेवेंडर ऑयल। इसमें आपके सर दर्द है, ज़ुकाम है, आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब दूर कर देता है। इसके काफ़ी सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स है, ये एंटी फंगल है, एंटी कैंसरस है। तो एक लेवेंडर ऑयल है, प्योर कश्मीर से हमने लाया है, और उसको हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके फिर हमने इसको ब्रांड किया हुआ है। ये किस किस चीज़ पे सर काम करता है, आप बता सकते हो? ये एक तो आपका अगर सर दर्द होगा, ज़ुकाम होगा, आपको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, या आपको लगी होगी तो उसके लिए ये काम आता है। आपको नींद की प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आती होगी, तो अगर आप पिलो पे एक ड्रॉप डालेंगे इसको, आपको रात को आँख नहीं खुलेगी, आप रात भर सोते रहेंगे।